Yes. Hi everyone. Just confirm if I'm audible or not in the comment section. Meanwhile, I'll put on the earphones. Am I audible to you all? Just confirm if I'm audible to you all or not. Okay, all right. So, okay, so we have a lot of people coming in. All right. So I'll just wait maximum for a minute or two, and after that we'll start the session. So, what all doubts you'll have during the session, you'll put them up in the comment section, and I'll try my best to answer all your queries, if possible, during the session. I mean, as we go slide by slide. Suppose I'm on one slide and you'll have doubts regarding that, so you can ask me. And if the number of doubts just go off the roof, then obviously I'll take them in the end of the session. In the end of the session. Also, what I would like you is you can share it with your friends, okay? Because the more and more people it reaches out, it's a basic strategy that I'm going to discuss. The more and more people it reaches out, it's going to be more and more beneficial in that direction. All right. So let's begin the session. Okay. Hi everyone, I am Tushar Chaudhary, and I'll be taking your session today on how to focus on studies for GATE exam. And yes, this is my first presentation, so bear with me if bear with me. All right. So I'll tell you about myself. I was an Academy Plus subscriber, and this year I'll tell you point by point through the presentation. I scored GATE All India Rank 86 in electrical engineering along with my job. So welcome everyone to the GATE Achiever Summit by an Academy, and here we go. All right. So first of all, about me, a little bit about me, so that you get to know me, you connect with me, and you'll have your queries regarding that. So here, as you can see, I scored All India Rank 86 in GATE in the year 2021, and in the year 2016, I cleared IIT the JEE Advanced Exam 1 with a rank of All India Rank 128. I did my BTech from Electrical Engineering from IIT Delhi, and I've worked with Intel in your VLSI field, so I have an experience with that also, and I have cracked GATE this year along with the job. All right. So yes, firstly, I know how it feels to be on the other side and what goes into the mind of the student. I know it very strongly, so I'll clear it. That firstly, you might be thinking, okay, he's from IIT and he's a brainy, he knows it all already. It's very easy for him when you compare it with us. No, that's definitely not the case. We all know how engineering goes like, right? Uh, so as the years of our life progresses, it's only and only the hard work that matters. Okay, and even in IIT JEE, I'll tell you, like in JEE, so like unless you're a top 50 ranker, it's all the they are like super talented brains. But again, everyone apart from them, it's basically a game of how much hard work you have done. I'll be sharing you with this strategy, and trust me, it's a purely based on तुम्हारी मेहनत पे ही होगा. Also, I've been told that this session is in Hindi, so I'll also speak in Hindi now. ठीक है, मतलब हमारा पर्पज ये है कि तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए. ठीक है, प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी है. हम लोग क्या करते हैं, प्रिपरेशन को सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत ही अलग की चीज़ है, मतलब कुछ कुछ जादू ही चाहिए होगा, कुछ ऐसा करना होगा जो हमारे बस के नहीं है. ये ऐसा बिल्कुल नहीं है. ठीक है, यहाँ पे तुम देख रहे हो ना, 2 एग्ज़ाम में ठीक ठाक रैंक आई है, तो मतलब मैं बता रहा हूँ मेहनत का ही खेल है, और मेहनत कैसे करनी है वो मैं तुम्हें इस सेशन में बताऊँगा. ठीक है, तो देखो, सबसे पहले
हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं गेट की, तो यू आर सपोज टू नो द गेम। ठीक है, गेट ठीक है, इट्स अ गेम, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, सबसे पहले देखो तो एग्जाम क्या कहता है इसको, गेट क्या है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। इसमें ना यार तुम इस पे ध्यान दो थोड़ा सा, कि ये जो कह रहा है कि एक सेकंड, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया। ये ग्रेजुएट एप्टीट्यूड बेसिकली एक एप्टीट्यूड टेस्ट डायरेक्शन में सोचो। ठीक है, पता है इंजीनियरिंग है, मतलब नोट्स होते हैं, इतने हैवी हैवी मशीन की चीज़ें होती हैं, समझ में नहीं आती हैं, पर उसमें भी तुम्हारी एक अपनी कैपेबिलिटी होती है एप्टीट्यूड वाली। ठीक है, तो एग्जाम एप्टीट्यूड बेस्ड है। देर आर अदर एग्जाम्स ऑल्सो जो बस थ्योरेटिकल नॉलेज तुम्हारी टेस्ट करते हैं, पर गेट में वो तुम्हारे एप्टीट्यूड, एक ग्रेजुएट एक एज एन इंजीनियर तुम्हारा एप्टीट्यूड कैसा है, व्हाट इज हाउ योर इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेस्ट। तो इसके देखो तीन तीन मेजर फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम क्या चीज़, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि एग्जाम क्या चीज़ टेस्ट करना चाहता है। एक तो तुम्हारी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग को टेस्ट करता है। ठीक है, कि मतलब तुमने कुछ पढ़ लिया, ठीक है, तुमने टीचर ने तुम्हें कुछ पढ़ाया, तुमने पढ़ लिया, फिर तुम्हें मैं कुछ कंसेप्चुअल सवाल बनाएंगे उस पर। ठीक है, और एक है कि ये बहुत हाई एक्यूरेसी गेम है, मतलब तुमने सवाल आता था नहीं आता था, आता था तो भी गलत कर देते हैं लोग। मैं भी इस बार तीन तीन चार सवाल गलत करके आया हूँ, और फिर बाद में मुझे लगा कि अरे। और फिर से गेट की एक चीज़ तो है कि साल में एक बार होता है, 3 घंटे का पेपर है, इधर यू मेक इट और ब्रेक इट इन दोस 3 आवर्स। समझ रहा हूँ, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। तुम अभी सोच रहे होगे कि अच्छा, हाई एक्यूरेसी गेम, 3 आवर्स, मेक इट और ब्रेक इट, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये तो बहुत प्रोफेशनल प्रोफेशनल बातें लग रही होंगी, है ना। तो मैंने इस प्रेजेंटेशन में क्या किया है, इन्हीं 3 पॉइंट्स को हाउ टू टैकल। ठीक है, अब मतलब कोई बोले कि अच्छा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग तुम्हारी टेस्ट होगी, इसको टैकल कैसे करें भाई, हमें ये बताओ। ये क्या तुम बड़े बड़े हैवी हैवी वर्ड बोल के जा रहे हो, हाई एक्यूरेसी गेम, क्या कोई एक्यूरेसी, क्या क्या उसका मतलब क्या है, और 3 घंटे मेक इट, ये क्या कोई मुकाबला चल रहा है क्या। तो ये सब पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्टली नो द गेम। गेट एग्जाम की 3 रिक्वायरमेंट है सिंपल सी, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाई एक्यूरेसी गेम, एंड 3 घंटे का है भाई सारा गेम। सारा गेम 3 घंटे का है, मेक इट और ब्रेक इट। बहुत बढ़िया। अब तुम्हें गेम का आइडिया लग गया। ठीक है, तुम्हें ये पता चल गया कि गेम में 3 चीज़ें मांग रहे हैं तुमसे। ठीक है, तुम्हें गेम का आइडिया लग गया। अब तुम करोगे तैयार अपने आप को गेम के लिए, गेम मतलब गेम के लिए मैं अपने आप को रेडी करूँगा। ठीक है, अब देखो, इट इज टेस्टिंग अ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये बात अब थोड़ा ना अब सीरियस हो जाएंगे, मतलब हम वी आर ऑलरेडी सम गुड अमाउंट ऑफ टाइम इनटू द प्रेजेंटेशन। इन अब अगले जो पार्ट है उसको बहुत सब सीरियसली सुनेंगे। ठीक है, देखो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तुम्हें अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने होंगे। ठीक है, तो उसके लिए जब तुम्हें कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, उस वक्त तुम्हें एकदम चौकन नौ के सुनना है यार क्लास में। ये नहीं कि तुम क्लास चल रही है और तुम बीच में व्हाट्सएप करके करते हैं। ठीक है, हर किसी से गलती होती है, इसलिए हर कोई सिलेक्ट नहीं होता है, सीधी बात है। यार तुम कहीं तो अपने आप को डिसिप्लिन लाओगे ना, कुछ नहीं करना है यार, क्लास चल रही है सब भूल जाओ, क्लास जब क्लास चल रही है क्लास पे ध्यान दो, फोकस ड्यूरिंग द लर्निंग स्टेप। ये तो स्लाइड का नाम है ना, हाउ टू फोकस ऑन स्टडीज। फोकस पूरी प्रिपरेशन में मेन यही चाहिए, जब टीचर पढ़ा रहा हो उसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, बात को ध्यान से सुनना, ये बहुत गहरी बात है, बहुत काम काम है कि किसी एक की मदद हो जाती है, मेरा बस पूरा पर्पज सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि अटेम्प्ट इन क्लास प्रॉब्लम। क्लास में टीचर्स आते हैं, प्रॉब्लम्स कराते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स कराते हैं, वो तुम्हें अपनी रफ कॉपी में करना है सॉल्व। ठीक है, एक तो तुम नोट्स बना रहे हो, देखो नोट्स, एक तुम नोट्स बना रहे हो, टीचर पढ़ा रहे हैं, तुम लिखते जा रहे हो कि अच्छा हाँ ये काम की बात है, काम की बात है। नोट्स के वक्त भी जैसे कि तुम अनअकैडमी से प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड हो, जब टीचर पढ़ा रहा है तो तुम्हें मेन सीखने पे फोकस देना है। कुछ लोग ये भी होते हैं कि रंग बिरंगे नोट बनाने लग गए, कि लाल पीला नीला, बस वो सब करने लग गए। रिकॉर्डेड सेशन है, फिर से देख लो नोट्स। ठीक है, मेन मैं बोल रहा हूँ फिर से, फोकस रखना है ड्यूरिंग द लर्निंग। टीचर पढ़ा रहा है, सारा अपनी अटेंशन टीचर को दो। डन। अटेम्प्ट इन क्लास प्रॉब्लम, टीचर क्वेश्चन सॉल्व कराएगा क्लास में, जो भी टीचर क्वेश्चन सॉल्व करा रहा है अपनी रफ कॉपी एक साइड में रखो, अपना सॉल्व करो। तुम्हें आता है नहीं आता है टेंशन मत लो, अपना खुद का अटेम्प्ट देखो। ठीक है, जब तुम अपना खुद का अटेम्प्ट देखोगे तो तुमसे गलत होगा, और इंसान की ईगो होती है बहुत बड़ी। जब तुमसे क्वेश्चन गलत होगा, तुमसे होगा नहीं, फिर तुम सुनोगे टीचर की बात बहुत ध्यान से, यार अच्छा अच्छा ये ऐसे बता रहे हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। जब एक बार ईगो हर्ट होती है ना, तो इंसान सीखता है। तो इन क्लास प्रॉब्लम को अटेम्प्ट, तो क्लास के बीच में प्रॉब्लम्स कराते हैं, डीपीपीज हो गई, उनको बहुत सीरियसली करना है।
क्योंकि यार वो तुम्हारी लर्निंग स्टेप है, ठीक है। और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बने, देखो गेट हो या आईटी चाहिए हो, दोनों कंसेप्चुअल प्रॉब्लम का ही खेल है, उसके लिए स्ट्रॉन्ग कैसे बने, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस फ्रॉम द रिसोर्सेज। अब अगेन मेरा हर बार दिमाग ऐसे घूमता था कि यार ये प्रैक्टिस तो बोल दिया, कहाँ से करूँ, कनोडिया से करूँ, भिमरा से करूँ, प्रीवियस ईयर करूँ, क्या कहाँ से करूँ, डीपीपीस करूँ, ठीक है, मतलब इट नेवर गेट्स इनफ। तो उसके बाद मैंने एट द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से बताया ये। अच्छा, दूसरी 3 पॉइंट्स है गेट जो मांगते हैं, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाई एक्यूरेसी गेम और 3 आवर्स मेक इट और ब्रेक इट, ठीक है। अब एक्यूरेसी के लिए क्या करें, ठीक है। अब तक बात समझ में आ रही है ना जो मैं बोल रहा हूँ, एक बार कमेंट सेक्शन में कोई भी बोल दो, इतने सारे लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। मेरी बात रिपीटेटिव होगी बिकॉज आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज ऑन इट, या थैंक यू मैम। तो हाई एक्यूरेसी गेम के लिए देखो क्या करना है, तुमको जो प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, उसको सिंसियरिटी से करना है। सिंसियरिटी से मतलब एक कमरे में बैठो, कमरा बंद करो, उस कमरे में तुम्हारी कॉपी होनी चाहिए, सवाल होना चाहिए, पेन होना चाहिए, कैलकुलेटर होना चाहिए वर्चुअल वाला, ठीक है। ये नहीं करना कि तुम बाहर बैठ गए वरांडा में, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कोई अंकल आ रहे हैं, तुम अंकल को नमस्ते कर रहे हो, चाय पी रहे हो, क्वेश्चन आधा सॉल्व कर रहे थे, फिर चले गए बाहर घूमने, फिर आए, फिर से उस पर बैठ गए, ये नहीं करना, ठीक है। फोकस का खेल यही वाला है, देखो जब टीचर पढ़ा रहे हैं पूरा फोकस टीचर को, जब क्वेश्चन कर रहे हो पूरा फोकस क्वेश्चन पे, मतलब मैं 15 क्वेश्चन करे बिना उठूंगा नहीं, ऐसे सोचना है, वो करके उठ जाओ, वो करके उठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर 15 क्वेश्चन पूरे संपूर्ण फोकस के साथ करके फिर उठ के घूमाओ, मतलब हर 20 क्वेश्चन के बाद 5 मिनट जाओ, टहल के आओ, फिर वापस आ जाओ, ठीक है। और ये तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम सिंसियरिटी के साथ करना है, ठीक है। एक्यूरेसी हमारी उससे ही इंप्रूव होती है, बहुत लोग बोलते हैं कि सिली मिस्टेक वाले से कुछ नहीं होता, तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे वो तुम्हारा निखर के आता है, ठीक है। ये गेट फेमिलियर विद द वर्चुअल कैलकुलेटर, ये यार ये गलती मैंने भी करी थी, इसलिए मैं इसको जरूर पॉइंट आउट करूंगा। वर्चुअल कैलकुलेटर मैंने एग्जाम के 1 हफ्ते पहले देखना स्टार्ट किया था, बहुत बहुत दिक्कत हुई थी, ठीक है। तुम लोग क्या कर, मतलब टेस्ट सीरीज में तो चलो फिर भी दिसंबर से मैंने हो गया था, थोड़ा थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो गया था, पर वर्चुअल कैलकुलेटर को तुम्हें लाइटली नहीं लेना है यार। वर्चुअल कैलकुलेटर क्या है, खुद चलो टूल है ना, तुम एक जंग में लड़ने जा रहे हो तो किससे लड़ोगे, कैलकुलेटर है तुम्हारे पास, पेन है तो पेन पेपर का तुम्हें आता है, वर्चुअल कैलकुलेटर सीख लो, बहुत सिंपल सा कैलकुलेटर है, बहुत ही साधारण सा है, ठीक है। अपने लैपटॉप में, फ़ोन में, किस में भी डाउनलोड करके रखो, सवाल लगाओ ना वर्चुअल कैलकुलेटर से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और और कभी कभी अगर सवाल नहीं हुए वर्चुअल कैलकुलेटर से, ये भी तुम लोग का डाउट है यार, वो इसलिए है कि वर्चुअल कैलकुलेटर अभी 2015 16 या 17 मतलब इसी टाइम से स्टार्ट हुआ है गेट में, उससे पहले तो अपना कुछ स्टैंडर्ड कैलकुलेटर जहाँ तक मुझे याद है वो यूज़ होता था, ठीक है। और कीप योर नर्व कूल ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, ये यार ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ये वाली चीज़ तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, तो इसलिए थोड़ा ना, इसलिए कहते हैं तुमने सुना होगा कि जिनकी टॉप 200 में आ रही है, नॉलेज तो सबकी सेम ही है, बस वो थोड़ा बहुत एग्जाम में परफॉर्मेंस का फैक्टर हो जाता है, ये तुम पर ये डिपेंड करेगा, ठीक है। माधुरी, आई कम टू योर डाउट, एंड रोहित, आई ऑल्सो कम टू योर डाउट, थैंक यू फॉर आस्किंग, ठीक है। प्रेजेंटेशन जल्दी से मैं कवर अप करता हूँ, फिर उस पर मैं तुम्हारे डाउट पे आऊँगा, ठीक है, ठीक है। तीसरी चीज़, 3 आवर्स मेक इट और ब्रेक इट, वही फार्मूला वन जैसे ही सीन है, देखो कि मतलब रेस है, अब तो तुम एग्जाम हॉल में बैठ गए, और एग्जाम में इफ़ यू आर एबल टू डू इट, इफ यू आर एबल टू नॉट डू इट, दैट इज ऑल। तुम एग्जाम में 3 घंटे क्या परफॉर्मेंस देख के आए, दैट इज अ रिजल्ट, पर रिजल्ट बनता तुम्हारी मेहनत से है, जब तक पहले से होती आ रही है। इसको टैकल करने का मेरे पास बहुत बढ़िया तरीका है भाई, देखो 4 पॉइंट्स हैं, सब में टेस्ट सीरीज लिखा है, टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज, समझ जाओ इस बात को। टेस्ट सीरीज तुम ये नहीं करोगे कि पहले तैयारी कर लूँ तो दूंगा, एक सब्जेक्ट खत्म करो, नेटवर्क पढ़ा तुमने, खत्म करो, नेटवर्क खत्म करो, उसका टेस्ट लिखो, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं यार, सबको पता है, कहाँ तुम छुपाते हो, सब बातें सबको पता है। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पढ़ो, मतलब एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करो, कंप्लीशन का क्या मतलब है तुम ये पूछोगे, क्लास अटेंड करो, प्रैक्टिस रिसोर्सेज खत्म करो, टेस्ट दो, ठीक है। टेस्ट दो, जो गलती होंगी वो तुम पता लगाना, ठीक है। रोहित यार तुम्हारे डाउट पे मैं आऊँगा तो मज़ा आएगा, अभी तुम लोड मत लो, ठीक है। अभी जो बोल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनो।
और अब ये है कि दूसरा पॉइंट ये है कि लोग ये बोलते हैं ना कि हम तो गेट की पूरी तैयारी करके गए थे, एंड में बहुत बोलते हैं पूरी तैयारी करी थी, नंबर नहीं आए, पता नहीं कैसे हो गया। यार तुम्हारे टेस्ट सीरीज में अगर नंबर कंसिस्टेंटली आ रहे हैं ना, तो एग्जाम में भी वही परफॉर्मेंस तुम्हारी रेप्लिकेट होती है। समझ रहे हो? अगर तुम टेस्ट सीरीज में टॉप 50 में आए जा रहे हो लगातार, तुम एग्जाम में भी टॉप 50 में आओगे, क्योंकि वही तो लोग हैं जो टेस्ट सीरीज में बैठे हैं, वही तो लोग एग्जाम देंगे। ठीक है? फियरिंग टेस्ट सीरीज कैन बी डिजास्टरस। भाई तुम टलाते रहोगे, हर कोई यही करता है, तुम टलाते रहोगे कि यार मतलब टेस्ट सीरीज देंगे, बाद में देंगे, अभी तैयारी है तो बाद में देंगे, तैयारी है। टेस्ट सीरीज प्रिपरेशन का पार्ट है। टेस्ट सीरीज इज द पार्ट ऑफ ए प्रिपरेशन। टेस्ट सीरीज में तुम नए क्वेश्चन करते हो, टेस्ट सीरीज से दोस्ती कर लो। मैं तो कहूँगा एक दो टेस्ट तुम नोट्स खोल के दे दो, टेस्ट का डर निकालो, टेस्ट का डर निकालो, नोट्स खोल के दो, बिल्कुल दो। पता है ना, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, एक दो टेस्ट नोट्स खोलो, चीटिंग करके दे दो एक दो टेस्ट, पर फिर उसके बाद के 20-25 टेस्ट मतलब अच्छे से देना, टेस्ट से डर निकालो। ठीक है? और जैसे कि मैंने बताया, टेस्ट सीरीज में देते हैं यार 2000-3000 लोग देते हैं एग्जाम, तो वही गेट का ही तो एग्जाम है वो भी। अरे वही 3000 लोग एग्जाम देने जाएंगे, वही 3000 लोग यहाँ दे रहे हैं, तो तुम उनमें जितना जैसा परफॉर्म कर पा रहे हो, जैसा कर रहे हो, तो वही तो तुम्हारे वहाँ जाकर रेप्लिकेट होगा। ठीक है? है ना? एकदम। अब स्टेप 3, इनको गेम को एंजॉय भी करना है। ये नहीं कि ऐसे मतलब क्या क्या एंजाइटी डिप्रेशन परेशान होके बैठ गए तो यार ये नहीं हो रही। ठीक है? याद रखो यार, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट है, थोड़ा कूल लो चीज़ों को, मतलब बी अ कूल इंजीनियर, बी अ स्मार्ट मैन। ठीक है? अब देखो, अगर तुम टेस्ट में अच्छा कर रहे हो, करो। देखो अगर तुम टेस्ट में अच्छा कर रहे हो, तब तुम थोड़ा, अब तुमने टेस्ट दिया, ठीक है, आ गई रैंक, कितनी आई? रैंक आई 300। अब तुम बोलोगे कि इस पर सेलिब्रेट करें ना करें? अगर तुम्हारी पिछली बार रैंक आई थी 500, बिल्कुल सेलिब्रेट करो। ठीक है? योर कॉम्पिटिशन शुड बी यू वर्सेज यू। ये नहीं कि उसको कैसे हराएं, उससे कैसे जीते। अबे अपने आप से। ठीक है? यू हैव टू compete with yourself. जब भी अच्छा करो, बिल आई एम टेलिंग यू, द टाइम इज ओनली वेस्टेड व्हेन यू आर सैड। द टाइम स्पेंट हैविंग फन इज नेवर कॉल्ड अ वेस्टेड टाइम। ठीक है? तुम अपना हैप्पीनेस लेवल इंक्रीज रखो। ठीक है भाई, आज मैं नेटवर्क के टेस्ट में 27 रैंक आई है, बहुत सही है, मैं बाहर जाऊँगा आज थोड़ा, मतलब बाहर खाना खा के आऊँगा, अब तो कोविड है, बाहर से मंगा लेना, माइक्रोवेव कर लेना। ठीक है? क्रिबिंग करना बंद करो यार। ये ये बता रहा हूँ ना, मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, मैंने खुद ये फेस किया है। ऐसे दिन आएंगे कि क्रिप करेंगे कि यार ये क्या, मैं मशीन से क्या पढ़ रहा हूँ, नोट तो समझ आ नहीं रहा। ठीक है? कि यार ये क्या, मैं मतलब मशीन के सिंक्रोनस में आज पढ़ लिया, फिर मैंने पावर सिस्टम पढ़ लिया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, यार आता ही नहीं है कुछ मुझे। भाई कॉन्फिडेंस, मुझे दिसंबर तक कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आया था, दिसंबर के एंड तक। मैं इकलौती चीज़ जिससे मुझे कॉन्फिडेंस आता था वो था कि टेस्ट सीरीज में मेरी रैंक आ रही है, 30 आ रही है, 40 आ रही है, तो मतलब भगवान है। ठीक है? भगवान है, टेस्ट सीरीज पे भरोसा रखना है, इसलिए क्रिप नहीं करना। यार तुमने, किसी ने पकड़ के जबरदस्ती बोला है क्या कि गेट दो? अगर बोला है तो देखो फिर तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे, तुम्हारा खुद का मन है ना कि गेट में अच्छा परफॉर्म करना है, तो करो। लाइफ सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। ठीक है? फ्रेंड सर्कल, लीव नो रूम फॉर नेगेटिविटी, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है? ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है, क्योंकि फ्रेंड सर्कल क्या है, तुम अपना पढ़ते हो, अपने मम्मी पापा से बात करते हो कभी कभी दिन में, फिर उसके बाद तुम फ्रेंड से बात करते हो। अब तुम दिन भर मेहनत करे इंसान, और तुम्हारे फ्रेंड ये सब बात करने लग जाए कि यार उसमें तो सीटें नहीं हैं, यार उसमें तो ये नहीं है, यार उसमें तो वो नहीं है। अरे मत मत सुनो, वो खुद पढ़ के बैठा होगा तुमसे ज़्यादा, फिर ऐसे कर रहा होगा, या उसे खुद बर्बाद होना होगा, तो तुम्हें 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 लेके डूबेगा। जिंदगी में मेहनत तुम करोगे, कभी वेस्ट नहीं जाती। और मेहनत क्या सोच रहे हो, अभी तो तुम एग्जाम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पूरे एग्जाम पे बहुत बढ़िया से फोकस करके दो, दो ना। ठीक है? क्या तैयारी में तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त मदद कर रहा है तो बोल रहा है कि यार, हाँ रोहित, ये डाउट मैं तुम्हारा अभी क्लियर करता हूँ, मेरे फ्रेंड्स कैसे थे? मेरे फ्रेंड्स, मैंने खुद देखा। ठीक है? एक तो मतलब एक टाइम पे मेरे ऐसे नेगेटिव फ्रेंड्स भी बने थे, मैंने, ज़िंदगी दुखद हो गई थी भाई, 1-2 हफ्ते के लिए ज़िंदगी बहुत दुखद हो गई थी, जब मेरे ऐसे नेगेटिव वाले फ्रेंड बन गए कि यार यहाँ सीट नहीं है, यार ये एग्ज़ाम तो कैसे करें, क्या करें। ठीक है? फिर मैं उससे बाहर निकला, मैं कहा हटाओ इसे, उसका उसको उसको ब्लॉक किया, उसका फ़ोन वोन उठाना बंद किया। फिर जो मेरे अच्छे सेट ऑफ फ्रेंड्स हैं, उनसे फिर बहुत मोटिवेशन मिलता था। फ्रेंड नहीं तो यार गेट के, नहीं तो फिर एक आध इधर का बना लो, कोई एमबीए का बना लो, नो। सो फ्रेंड्स, ग्रुप स्टडी कभी कोई मदद नहीं करती। ठीक है? ग्रुप स्टडी कोई कभी बहुत ज़्यादा मदद नहीं करती।
दोस्त आपस ग्रुप स्टडी का देखो ये फंड है, अगर दो से ज़्यादा लोग हुए तो बस टाइम पास होगा। दोस्त ग्रुप स्टडी मतलब बस वन टू वन किसी से डाउट ले लो, ठीक है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल माधुरी, ये डिमोटिवेशन से दूर रहना है। अपने अपने ख्याल कम है क्या, जो अपने खुद के स्ट्रेस आते हैं कि यार तैयारी कैसी चल रही है, वो चल रही है, ऊपर से दूसरा आके बोलने लग जाता है, ठीक है। इंजॉय करना है प्रिपरेशन को, क्योंकि तुमने स्टार्ट किया था, याद रखना, ठीक है। अब अभी तक देखो तीन पूरे इसमें ना दो बहुत मेन बात है, टेस्ट सीरीज और अपने आप को मोटिवेटेड रखना, ठीक है। अगला देखो प्रेजेंटेशन खत्म होने वाली है, ये मैं तुमको बता रहा हूँ, ये लगेगा कि ये मैं बता रहा हूँ, ये मैं गूगल सर्च, कोरा सर्च, यूट्यूब सर्च सारे सर्च कर लिए मैंने, ये मुझे बहुत बड़ा डाउट रहता था, अब ये मेरा डाउट क्लियर हुआ है तो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। ये बात तुम गांठ बांध लो, दिस इज इनफ फॉर अ टॉप 100 रैंक, ट्रस्ट मी। लोग करते नहीं हैं, लोग इतना भी नहीं करते हैं। तो गेट के प्रीवियस ईयर उठाओ, इलेक्ट्रिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन के, इंस्ट्रूमेंटेशन के, समझ गए। इलेक्ट्रिकल के सारे करने हैं, एक एक सवाल करने हैं। यार अब लोग पूछते हैं प्रीवियस ईयर 20 ईयर्स की किताब करें 30 ईयर्स की करें, जो मिले कर लो, ठीक है। 30 ईयर्स की मिले कर डालो, खत्म करो, खत्म करने एक एक क्वेश्चन, देर इज नो वे आउट, खत्म करने हैं सवाल। इलेक्ट्रॉनिक्स की उठाओ, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की उठाओ, ठीक है। ईसीई में जो तुम्हारे कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, नेटवर्क हो गए, कंट्रोल हो गए, सिग्नल हो गए, एनालॉग हो गए, डिजिटल हो गए। एनालॉग में कुछ कुछ टॉपिक्स नहीं है, इलेक्ट्रिकल में देख लेना। कॉमन सब्जेक्ट से सवाल लगाओ। तुमने इलेक्ट्रिकल आईएन तो मैं भी नहीं कर पाया था, हमने आईएन भी नहीं कर पाया था मैं, और ईसीई में भी पूरा नहीं कर पाया था, ठीक है। तुमने ई और ईसीई पूरा कर लिया ना, तुम्हारी रैंक कोई नहीं छीन रहा है, ये बात ध्यान रखना। कनोडिया बिमरा भागते रह जाओगे, एग्जाम हर साल आएगा, एग्जाम आता रहेगा, तुम कनोडिया बिमरा ही करते रह जाओगे, समझ गए। ई, ई सी, आई एन, तुम इतना कर लो, जिस दिन ये तुमने एक एक सवाल इनके कर लिए ना, और उस दिन तुम्हारी रैंक नहीं आई, तो मुझे कॉल करके बताना कि सर आपने बोला था रैंक नहीं आई, ठीक है। माधुरी तुम्हारे डाउट्स पे आऊँगा, तुम सही डाउट पूछ रहे हो, थैंक यू सो मच। ये बात गांठ बांध लो, मैंने इसलिए इसको हाईलाइट किया है। ये रिसोर्सेज तुम करो ज़रा, तुम्हारी टॉप 50 में अभी लिख लो, रैंक ना आए तो मुझे बताना। ये होना चाहिए कि सारे सवाल करे होने चाहिए तुमने, ये पूरी रिसोर्स। इन क्लास प्रॉब्लम्स जो तुम्हें टीचर पढ़ा रहा है, जो तुम्हें डीपीपी दे रहा है, उसके एक एक सवाल करो, कवर टू कवर भाई, ये नहीं कि ऑड नंबर इवन नंबर, सारे सवाल खत्म करने, ठीक है। टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज भी क्वेश्चन बैंक है। जब तुमने ना ये ऊपर वाली दो चीज़ें कर ली, जब तुमने ये कर लिया, जब तुमने ये कर लिया, फिर तुम्हें अब चाहिए नए क्वेश्चन। अब तुम कनोडिया वनोडिया से, भिमरा विमरा से आगे निकल चुके हो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम गेट वाला है, कॉलेज का सेमेस्टर एग्जाम नहीं है। गेट में थोड़ी कंसेप्चुअल चीज़ चाहिए, यहाँ पे हमें मतलब वो नहीं करना, समझ रहे हो, ऐसे मजदूरी नहीं करनी है, थोड़ा स्मार्टली चीज़ों को करना है। वैसे तुम्हारी मजदूरी इतने में ही हो जाएगी, गेट के प्रीवियस ईयर 3 ये करने में और इन क्लास प्रॉब्लम करने में बहुत थक जाओगे। टेस्ट सीरीज उठाना, ठीक है, कोई भी दो दो टेस्ट सीरीज उठाओ अपनी मर्जी की, और तुम्हें पता है कौन सी जो भी ठीक रहती हैं, खत्म करो। टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, फुल सिलेबस, तुम्हारे ये टेस्ट 100-200 हो जाएंगे, कोई नहीं करता। मेरे से खत्म नहीं हुए थे, मेरे से एक कोचिंग के पूरे खत्म हुए थे, वो भी मतलब उसमें भी लास्ट में कुछ कुछ रह गए थे, मतलब मैंने लगभग फुल सिलेबस टेस्ट मैंने 20 लगाए थे बस, समझ लो इतने में इतना इतनी सही बात बन जाती है। करो, दिमाग क्या चाहता है, मेहनत नहीं करना चाहता, दिमाग चाहता है कि अबे अच्छा ये करना पड़ेगा, तो फिर दिमाग सोचता है कि नहीं यार मैं तो मतलब डिप्रेस हो रहा हूँ ज़िंदगी में, मतलब वो बस अपने अपने रीजंस लाते हैं कि मेहनत ना करनी पड़े। सीधी बात है, वेरी सिंपल स्टेटमेंट, डू दीज थ्री थिंग्स, इफ यू डोंट गेट अ रैंक इन द टॉप 100 कॉल मी एंड टेल मी सर इट डिडंट वर्क, ठीक है। ये तीन चीज़ें, अबे मैं स्मार्ट नहीं हूँ मेरे भाई, वही तो बोल रहा हूँ। ये देखो तुम, ये देखो, ये तुम, ये तुम आईआईटी जेई और एक गेट, तुम्हें लग रहा है कि स्मार्ट है, स्मार्ट नहीं है। मैंने आईआईटी जेई के लिए 11वीं से 12वीं में बस यही किया, कोचिंग का सामान करो, टेस्ट सीरीज करो। लोग करते नहीं हैं, लोग पहले ही बोलने लग जाते हैं, यही मैं तुम्हें बात समझाना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो। हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम सोचते हैं कि टेस्ट सीरीज करेंगे, हम खरीद लेते हैं। गेट में 1 लाख लोग एग्जाम देते हैं अगर इलेक्ट्रिकल में, तो मैं पक्का से कह सकता हूँ 50 से ज़्यादा लोग नहीं है तो टेस्ट सीरीज पूरी कंप्लीट करके जाते हैं, पूरी मतलब पूरी, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, फुल सिलेबस। और ये नहीं कि टेस्ट मतलब ओपन करके सबमिट कर दिया, पूरा सॉल्व करना है, सॉल्व करने की बात कर रहा हूँ, इतना करो, बिल्कुल आएगी, ठीक है। चलो फाइनल स्टेप, ठीक है, स्माइल, यू आर गोइंग टू मेक इट।
ठीक है, अब मैं तुम्हारे डाउट पे आऊँगा, इसमें लास्ट 5 मिनट दिखा रहे हैं। ठीक है, तो होपफुली तुम्हें प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी। देख लेना रेफरल कोड, अगर तुम आई वुड से कि अकेडमी बहुत ही यूजफुल रहे, मैं खुद प्लस सब्सक्राइबर हूँ, अगर तुम्हें मन हो तो ये तो मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो 958 तुषार। 958 ये अलग स्टोरी है, मतलब बोल्ट, उसेन बोल्ट का वो है ना वर्ल्ड रिकॉर्ड। चलो अब तुम्हारे में फटाफट से डाउट लेता हूँ, 5 मिनट रह गए हैं। अच्छा यार, इन केस अगर मैं डाउट सेशन ख़त्म हो जाता है ना, तो यू कैन रीच मी आउट ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, यहाँ पे यार मैं टाइप अच्छा यहाँ कर लेता हूँ, कमेंट सेक्शन में मैं तुम्हें अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे रहा हूँ, वहाँ पे तुम रीच आउट करना। हाँ हाँ यार, तुम्हें पता है। अच्छा, तो इस पर है। ठीक है, इस पर तुम मुझे पूछना, अब मैं तुम्हारा डाउट लेता हूँ, अगर सेशन एंड हो जाता है तो तुम बाकी लोग मुझसे वहाँ से पूछ सकते हो। चलो अब मैं तुम्हारे ऊपर से डाउट लेता हूँ। ठीक है यार, ये मेरा पहला सेशन था, होपफुली मतलब मेरा भी पहले ही था यार, समझ जाओ, होपफुली हेल्पफुल रहा। सर कुछ भी ट्राई करने सर कभी कभी कुछ ट्राई करने पे बिल्कुल नहीं बनते। हाँ, बहुत क्वेश्चन आएंगे जो देखो पहली बार में नहीं बन रहे ना माधुरी, बहुत आएंगे यार। तुम 100 क्वेश्चन कर रहे हो, तुमसे पहली बार में 60 बनेंगे। ठीक है, तो जो नहीं आएंगे उनको मार्क करो, स्टार मार्क करो। ठीक है, जो लोग कहते हैं कि गेट के प्रीवियस ईयर 2 से 3 बार करने, उसका मतलब ये है कि एक बार सारे कर लिए, अगली बार 4 मार्क वाले टेस्ट सीरीज से पहले रिवाइज कर लिए। 4 मार्क करो, ईगो नहीं लानी है, ईगो नहीं लानी है कि यार मैं तो कोचिंग में पढ़ा, मैं तो अच्छे से नोट सुना, मेरे से 100 में से 50 सवाल बने। ईगो नहीं लानी है, ईगो खेल बिगाड़ता है स्टूडेंट का। ठीक है, जो नहीं बन रहे उन्हें 4 मार्क करो, उनका सॉल्यूशन समझो, उनका सॉल्यूशन समझो, जब तक ना लगे कि हाँ अब मेरे को फिर से क्वेश्चन दे दोगे मैं सॉल्व कर दूंगा, तब तक उससे आगे मत बढ़ो। पेशेंस चाहिए इस चीज़ के लिए, मैंने आसानी से बोल दिया, पेशेंस चाहिए, पर पेशेंस रखोगे तभी नंबर बनेंगे। अच्छा, रोहित पूछ रहा है सर रिलेशनशिप के साथ कैसे प्रिपरेशन करें। यार रिलेशनशिप के साथ प्रिपरेशन देखो ऐसा है कि ये तो तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, बोला ना कि जैसे जब तुम प्रिपेयर कर रहे हो तुम्हें फोकस प्रिपरेशन, मतलब जब तुम कमरे में घुसे, पढ़ाई को ऐसा अपना मंदिर समझो। ठीक है, कमरे में घुसे, दरवाज़ा बंद करो, मोबाइल फ़ोन बाहर रहेगा, कमरे में घुसे, या कैलकुलेटर के लिए यूज़ कर लेना, वर्चुअल कैलकुलेटर के लिए एयरप्लेन मोड पे, कमरे में घुसे, अपने पढ़ने बैठो, 10 सवाल लगाओ, 10 सवाल लगाने 30 सवाल लगाओ, करो, उठ के बाहर जाओ, शाम को तुम्हारे का कुछ देखो, एग्ज़ाम के बीच में रिलेशनशिप नहीं बनाना है। अगर पहले से तुम्हारा कुछ है सीरियस है, देखो रिलेशनशिप तो कैसी बात है यार, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ भी रिलेशनशिप है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ भी होगा, तो तुम माँ बाप से ये थोड़ी ना बोलते हो जाके कि आज से मैं गेट की तैयारी कर रहा हूँ, तो मम्मी पापा बस आज से आपका और मेरा रिश्ता खत्म, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो अपना काम करते हो, फिर अपने माँ बाप से जाके शाम को बात करते हो, रखो अपना, जो भी तुम्हारी प्रिपरेशन में हेल्प करे ना। देखो रिलेशनशिप बहुत अच्छा हेल्प करता है कई बार, इसलिए हेल्प करता है कि पॉजिटिविटी का एनवायरनमेंट बनता है, तुम कई बार नेगेटिविटी से दूर रखता है तुम्हें। और अगर टॉक्सिक है तो फिर तो बात ही अलग है। तो ये तुम्हें रिलेशनशिप इज नेवर, तुम यही सोच लेना कि तुम्हारे माँ बाप से जो तुम्हारा रिश्ता है, तुम गेट के से पहले ख़त्म थोड़ा ना करते हो, तैयारी से पहले। ठीक है, रोहित का डाउट है कि अच्छा, ये बात बड़ी गजब की है सर, डिमोटिवेट हो जाते हैं फ्रेंड्स लोगों की नेगेटिविटी की वजह से। हाँ माधुरी, तो डिमोटिव दूर रखना है अपने आप को, ऐसे जो फ्रेंड्स देख लो कि डिमोटिवेट कर रहे हैं, हटाओ इसे, नए दोस्त बनाओ भाई, ऐसा ही है। तो नेगेटिव फ्रेंड्स, फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ये यार, ये नेगेटिव वाले लोग ना मतलब बहुत दिक्कत करते हैं, इनसे दूर रहना है। ठीक है, इनसे अपने आप को दूर रखना है, आपको गेट एग्जाम क्लियर करना है। फ्रेंड्स इज़ अ वेरी, तुम जहाँ ज़िंदगी में जहाँ जा रहे हो ना, अगले अगले मुकाम पे वहाँ दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, अगर पुराने वाले से इतनी दिक्कत है तो दोस्तों की कमी नहीं है ज़िंदगी में, बहुत अच्छे लोग हैं दुनिया में। अपने आप को पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखना है। अगर हैव द गट्स माधुरी, मतलब तुम्हें ये देखना है कि ये इंसान मेरी तैयारी में तकलीफ दे रहा है, हटाओ इसे, एवरीथिंग कैन वेट। ठीक है, फिल्टर आउट करो, ज़िंदगी में खुश रहने के लिए तो पढ़ रहे हैं यार, ये कि हम पढ़ रहे हैं और फिर दुखी हो गए, क्योंकि खुश रहने के लिए तो पढ़ रहे हैं। सर सबसे पहले यार, अब आधे घंटे में सेशन ओवर होने वाला है, मतलब आधे मिनट में। आई ट्राई माधुरी, तुम्हारा डाउट सबसे पहले डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करें या इजी। देखो तुम अगर अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो तुम इजी से स्टार्ट करो, 1 या 2 इजी सब्जेक्ट करो, सब्जेक्ट कंप्लीट करो, उसका टेस्ट दो, सॉरी, सब्जेक्ट कंप्लीट करो, उसका टेस्ट दो, तुम्हारे इसमें अच्छे नंबर आएंगे क्योंकि तुमने इजी था तुम्हारे लिए, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर तुम इस मोमेंटम से मुश्किल वाला भी खत्म कर जाओगे। ठीक है, पहले इजी से स्टार्ट करना है। किस मंथ से टेस्ट सीरीज लिया यार, बताएं ना, पहले सब्जेक्ट के सेशन खत्म हो गया, मुझे इंस्टाग्राम पे रीच कर लेना। थैंक यू।
अच्छा, क्लिक ऑन द टाइमर टू, अच्छा, सो आई कैन एक्सटेंड द क्लास. ओके, 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 ओके. क्लिक ऑन द टाइमर टू एक्सटेंड द क्लास, एक्सटेंड बाय 10 मिनट्स. ठीक है, हो जाएगा सेशन. पहली बार ले रहा था ना मैं, तब तुम्हारे डाउट्स लेते हैं ठीक से. सॉरी. किस मंथ से टेस्ट सीरीज लिया जाए? देखो, तो बताया ना कि जब तुम्हारा कोई इजी सब्जेक्ट खत्म हो जाए, टेस्ट देना है, तो अभी तुम गेट की प्रिपरेशन के वक्त ही टेस्ट सीरीज खरीदो. तुमने पढ़ा नेटवर्क थ्योरी, कंप्लीट करा, टीचर के लेक्चर सुने, जो प्रैक्टिस रिसोर्सेज बताई खत्म करी, टेस्ट सीरीज पे आ जाओ. टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज नेटवर्क का खत्म करो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. आगे के जो मुश्किल सवाल है वो भी, मुश्किल सब्जेक्ट है वो भी बनेंगे. ठीक है. तो किस मंथ से का कोई नहीं है, तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, टेस्ट सीरीज ले लो. ठीक है. ठीक है. नहीं हो पाता. वैष्णव त्रिपाठी क्या नहीं हो पाता बताओ? वाह, मौज कर दी, बहुत सही. आपने नए दोस्त बनाए. ये तो सर, फ्रेंड्स कहते हैं कि अब गेट करके क्या होगा, जॉब मिल नहीं रही है. देखो यार, जॉब का ये सिनेरियो है, कोविड है तो जॉब तो अभी कहीं कहीं नहीं हो रही, कहीं नहीं मिल रही है ऐसे तो. कोविड का सिनेरियो है, थोड़ा पेशेंस रखो. पेशेंस रखो. और 2020 के रिक्रूटमेंट भी अभी तक हो रहे हैं ना, तो उसका सिनेरियो ये है कि your what you deserve can be delayed because of the abnormal situation, but it can never be denied. सिंपल सी बात है. ठीक है. आईआईटी से एमटेक कर लो, ऐसी से एमटेक कर लो, इसमें बहुत अच्छी जॉब्स हैं. ठीक है. यस ऋषभ, आई एक्सटेंड द क्लास. या, थैंक यू. ओके, सो किसकी टेस्ट सीरीज ली? सो टेस्ट सीरीज यार अन अकेडमी पर है. बाकी 2 टेस्ट सीरीज लो तुम. 2 टेस्ट सीरीज करोगे, इट विल बी मोर देन इनफ. ऑल राइट. ये ओके सर, आई एम डीमोटिवेटेड अगेन ऑफ स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, हाउ टू फेस इट, आई गॉट. एक सेकेंड, इसका डाउट काफ़ी इंपॉर्टेंट था. देखो, तुम्हारी रैंक ये आई है. ठीक है. पढ़ाई का सिंपल सा फंडा है, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम आगे बढ़ोगे. तुम्हारी ये जो तुम्हारी रैंक आई है, एटलीस्ट यू गॉट द स्कोर कार्ड ना. पॉजिटिव एस्पेक्ट पे देखो. हम डिमोटिवेट तब होंगे जब हम अपने आप से बहुत ज़्यादा ईगो रख लें कि भाई मेरी ये रैंक कैसे आ सकती है. दुख हुआ होगा तुम्हें, क्योंकि अगर तुमने तैयारी बहुत अच्छे से करी होगी, दुख हुआ होगा. इससे कैसे बढ़े? ठीक है. अब ये तुम पे, तुम्हारा पर्सनल इसमें टेक है कि हाउ हाउ यू वांट टू टैकल इट. या तो अपने आसपास की थोड़ी सराउंडिंग बदलो. ठीक है. थोड़ा मतलब एक आध दिन थोड़ा अपने फ्रेंड से बात करो, फैमिलीज को अपना कंसर्न बताओ कि ये ऐसे ऐसे रहा है. फैमिली को कॉन्फिडेंस मिलो कि हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम तैयारी करो. अगर तुम सच में गेट करना चाहते हो तो ये इतनी बार इतनी रैंक आई, किससे फ़र्क पड़ता है? मैं बताता हूँ. इसमें बात होती है थ्रेशोल्ड की. मान लो थ्रेशोल्ड तुम्हारा यहाँ पर है. ठीक है. अभी तुम यहाँ पर हो, थ्रेशोल्ड यहाँ पर है, ये तुम्हारे थ्रेशोल्ड है. अब तुम यहाँ पे हो, तुमने 1 साल पढ़ा. ठीक है. इंजीनियरिंग का तुमने अभी 1 साल पढ़ा. समहाउ तुम एफर्ट्स इतने, मतलब जितना भी टाइम था, जैसे भी आसपास सिचुएशन थी, तुम यहाँ तक पहुँच पाए. तो यहाँ तक पहुँचे तो सही. अब तुम यहीं पे गिव अप मार दोगे तो तुम तो नीचे चले जाओगे ना. तुम्हें सपना क्या था? तुम्हारा सपना था कि मुझे ये क्लियर करना है. यहाँ तक आए ना, थोड़ी सी हिम्मत और रख लो दोस्त. मेहनत करोगे. अब तुमने इतनी मेहनत करी, इतनी. अब तुमने अगली बार इतनी मेहनत कर दी. ठीक है. तो यहाँ आ गए ना तुम, जबकि तुम्हें तो बस ये क्लियर करना था. हिम्मत की बात होती है, हिम्मत नहीं हारनी है. तुम्हें अगर ये करना है तो लगा दो यार, जाने दो यार, जान लगा दो, सीधी बात है. हाउ टू बी कंसिस्टेंट, वन डे वी स्टडी मच बट नेक्स्ट डे, एग्जैक्टली. तो आजकल इसमें दिक्कत ये आती है, हम ये सोच लेते हैं कि अ, हम बहुत ज़्यादा अपने आप से ना ओवर टारगेट बनाते हैं. हम सोचते हैं कि मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम रोज़ 6 घंटे पढ़ के दिखा दो. तुम बोलो कि सर तुम 6 घंटे बोल रहे हो, मैं तो मतलब रोज़ 10 घंटे पढ़ूंगी, मैं वेरी सीरियस कैंडिडेट फॉर द एग्जाम, ऐसे कैसे हो जाएगा? स्टार्ट स्मॉल. ठीक है. अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो. हम एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि हम तो, मैं हूँ गेट का टॉपर, मैं पढ़ूंगा 12 घंटे रोज़. ठीक है. होगा नहीं. अपने आप से एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक और कम रखो. कम एक्सपेक्टेशंस रखो, खुश रहोगे कि भाई आज मैं तैयारी स्टार्ट कर रहा हूँ, आज मैं 4 घंटे पढ़ूंगा. 4 घंटे पढ़े ना, खुश हो रहा हूँ. 4 घंटे में कंसिस्टेंसी लाओ. अपने आप को अगले दिन ऐसे मोटिवेट करना कि कल मैं 4 घंटे जब पढ़ लिया तो अब अगले दिन तो मैं इससे ज़्यादा पढ़ ही सकता हूँ, या इतना ही पढ़ लूँ. इतना भी तुम पढ़ लो, बहुत सही रहेगा. ठीक है. पहले कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डोमिनो इफेक्ट होता है ना, छोटा सा डोमिनो कैसे करते 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 कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें गिरा देते हैं. ठीक है. कंटिन्यू ब्रेक.
एक सेकेंड, यस। कंटिन्यू ब्रेक होने पर कम बैक कैसे करें, बहुत दिक्कत होती है। हाँ यार, ये मैंने गेट की प्रिपरेशन में देखा है। एक्चुअली इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स है थोड़े से हल्के से, देखो हैवी, हल्के से हैवी हो जाते हैं, ठीक है, कि मतलब अच्छा इतना सारा अच्छा ये याद कर रहे हैं, फिर कई बार हम थोड़े बोर से हो जाते हैं, लगता है कि यार मतलब मैं क्या कर रहा हूँ ज़िंदगी में, क्या क्या नेटवर्क नेटवर्क, क्या सिग्नल सिग्नल, क्या कंट्रोल कंट्रोल, कई बार चीज़ें हमें दिख नहीं रही होती हैं, ठीक है। तो तुम अन अकेडमी पे अगर जैसे काफ़ी अंकित गोयल सर है, विशाल सोनी सर हैं, इनके कई बार मोटिवेशनल सेशन भी अटेंड कर लिया करो, थोड़ा सही रहेगा, ठीक है। पर मैं तुम्हारी बात यार ये मतलब समझ रहा हूँ मैं कि कंटिन्यू ब्रेक होता है तो कम बैक कैसे करें। इसका एक सिंपल सा फंडा तो मुझे समझ में आता है, ठीक है। एक जो फौजी होता है ना आर्मी में, ठीक है, तो ऐसे जंग में जाते हैं, कीचड़ में ऐसे चल के जाते हैं, फिर दे स्टैंड अप एंड दे शेक देमसेल्फ, मतलब स्टैंड अप एंड शेक योरसेल्फ एंड गेट गोइंग। यार ये थोड़ा मोटिवेशन का फंडा तुम्हें खुद से ही, यू नो व्हाट गिव्स यू द किक इन लाइफ, वो तुम्हें देखना पड़ेगा। क्योंकि ये जो तुम्हारा डाउट है, अब ये कंटिन्यू ब्रेक होने पे अगर हर कोई कर ले तो फिर हर किसी के नंबर आने चाहिए, ये तो नहीं कर पाते हैं लोग। पेशेंस, परसिस्टेंस और हार्ड वर्क की बात है। सर, इज इट द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम स्टार्टिंग? धीरज, दिस इज द perfect most bestest time to start. Even if you start from June, it is the bestest time, but you're starting so early, this is it, तुम पूरा स्टार्ट कर दो, सीधी बात है, तुम पूरा इसमें अच्छे से कर लो, पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल धीरज, दिस इज इट, दिस इज द टाइम, इसमें नो डाउट, ठीक है। माधुरी पूछ रही है कि सर रिवीजन कैसे करें। हाँ, तो देखो रिवीजन में कुछ लोग शॉर्ट नोट बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने तुम्हें क्या बोला, जैसे तुम इस वाली स्लाइड पे आ जाओ, टेस्ट सीरीज वाली ना, ये तुमने देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुमने क्लास के नोट्स बनाए, क्लास देखी, प्रैक्टिस मटेरियल फिनिश किया, मटेरियल प्रैक्टिस करते करते काफ़ी सारे तुम नए फॉर्मूले सीखोगे कि अच्छा ये ऐसे ऐसे करना था, ऐसे ऐसे करना था। फिर अब जब तुम टेस्ट सीरियसली दोगे ना, जब तुम टेस्ट सीरियसली दोगे अपने, फिर तुम्हारे अपने आप ही उससे फॉर्मूले याद होंगे। ये बात बताओ, तुमने नेटवर्क की क्लास लगा ली, नेटवर्क के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तुम्हें मैं बोलूँ कि इस मतलब अगले संडे तुम्हारा नेटवर्क का टेस्ट है, एग्जाम है, जैसे कॉलेज में एग्जाम होता था, ठीक है, ठीक है, कॉलेज में कुछ लोग फर्रे ले जाते थे, ये सब नहीं, कॉलेज में जैसे एग्जाम होता था, ये तुम्हारा फाइनल एग्जाम है, तुम नेटवर्क को पूरा रट डालोगे ना, तुम्हारे माइंड को पता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं भूल जाता हूँ, तुम वो याद कर डालोगे, वो याद करो, और बेसिकली हाउ टू रिवाइज इज जस्ट कंप्लीट ऑल दीज टेस्ट, दिस इज अ फुल प्रूफ मेथड, कंप्लीट ऑल दीज टेस्ट, गिव द टेस्ट एज इफ इट इज द फाइनल एग्जाम, दैट इज इट। शॉर्ट नोट्स वो सब तुम्हारे दिमाग को पता है। तुम्हें अभी बोलूँ कि मैं तुम्हें 1 घंटे बाद टेस्ट है, तुम्हारा इंटरव्यू लूंगा नेटवर्क थ्योरी का, तुम लिखने लग जाओगे ना कि अच्छा नेटवर्क का फॉर्मूला था, ऐसे तुम याद कर लोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि अच्छा टेस्ट है, टेस्ट है, टेस्ट है, टेस्ट को सीरियसली लेना है, ठीक है। तो अब ये हो गया, होपफुली तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और ये सेशन को मैं ऑलरेडी काफ़ी एक्सटेंड कर चुका हूँ। बाकी कोई डाउट हो तो अच्छा, ओके, अब बाकी कोई डाउट हो, ठीक है। थैंक यू नितिन, आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू ऑल, एंड अच्छा एक्सपीरियंस है यार काफ़ी मुझे ये सेशन लेके, ठीक है। मैं भी अभी 2020 के ग्रेजुएट हूँ, तो होपफुली आई वाज एबल टू यू नो कन्वे द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। ये याद रखना, हम लोग हमेशा दिमाग मेहनत करना चाहता नहीं है, तो दिमाग कम्स अप विद रीजंस कि ऐसा क्या करें कि हम मतलब मेहनत को मिनिमाइज कर लें, कि अच्छा नहीं दोस्त नहीं पढ़ने दे रहे हैं, ये नहीं पढ़ने दे रहे हैं। याद रखना कि वाई यू आर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, एंड डू इट होलिस्टिकली, डू इट पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच। फिर से अगर किसी को कोई हेल्प हो, अगर कोई डाउट रह गया हो, तो इस पर कर लेना मैसेज। वैसे जहाँ तक मुझे आइडिया है, अन अकेडमी पे भी यू कैन रीच मी आउट, इन केस नॉट सो यू कैन रीच मी आउट हेयर ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। तो यस, थैंक यू ऑल, इट वॉज अ वंडरफुल फीलिंग कंडक्टिंग द सेशन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड ऑल द बेस्ट।